الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر، کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عشاء کے بعد ایک تسبیح درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نور مصطفیٰ قریشی نے عرض کیا کہ حضور، جو وظیفہ دونوں جہانوں کے لیے فائدہ مند ہو ارشاد فرمائیں۔ خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم دونوں جہانوں کی فلاح چاہتے ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی اور فائدہ ہے۔ میرے عزیزو، اکثر احباب کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری تعداد نہیں بڑھ رہی۔ ایسا کوئی فارمولا یا ایسا کوئی طریقہ خاص ہے کہ جس سے تعداد میں اضافہ ہو تو براہ کرم بتا دیں۔ اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کا کوئی بھی کام اصول سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ اصول سے ہٹ کر کام کریں گے تو محنت بھی زیادہ لگے گی، کام کی سپیڈ بھی سلو رہے گی اور آپ ہمت بھی جلدی ہار جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، مثلاً فزکس، کیمسٹری اور میٹرک میں آپ نے ریاضی کے مسائل حل کیے ہوں گے، مسئلہ فیثاغورس کو حل کرنے کے لیے شرائط متغیر کی امتزاج، مساوات، منفی کی تعداد وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کو مد نظر رکھ کر آپ لوگ الجبرا کو حل کرتے ہو۔ کسی ایک بھی اصول کو اپنی مرضی سے حل کرنے کی کوشش کرو گے تو الجھ جاؤ گے، تھک جاؤ گے، جواب صحیح نہیں نکلے گا۔ اور اگر جواب صحیح نکل بھی آتا ہے تو آپ کی اس میں انرجی ضائع ہوگی، ٹائم لگے گا، محنت زیادہ ہوگی آپ کی۔ اسی طرح فزکس پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی آپ کو طبیعیات، مادے اور توانائی کے علم اور ان کے باہمی تعلق کے اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ فزکس کو سمجھ اور پرکھ سکتے ہو۔ الغرض کوئی بھی علم ہو، اصولوں کے مطابق ہی سیکھنا اور سمجھنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح درود شریف بھی باقاعدہ ایک علم ہے، اسے بھی اصولوں کے ساتھ سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو راستہ آسان لگے گا۔ اور یہ اصول بزرگان دین، اولیاء اللہ کے بتلائے ہوئے ہیں، جنہوں نے لمحہ بلمحہ اپنی تمام تر عمر درود شریف پڑھنے میں گزاری۔ اب اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ مثلاً تعداد میں اضافہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے، ہمیشہ تھوڑی تعداد سے زیادہ تعداد کی طرف جائیں تاکہ مستقل مزاجی نصیب ہو اور طے الوقت حاصل ہو۔ طے الوقت سے مراد کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ طے الوقت تبھی حاصل ہوگا جب آپ تھوڑی تعداد سے زیادہ تعداد کی طرف ترتیب سے، ہمت اور محنت سے بڑھیں گے۔ یکدم زیادہ کی لالچ کریں گے تو یقین جانیں آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ وہ یہ کہ آج آپ زیادہ پڑھ لیں گے تو کل کو آپ کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی آپ نے کسی کے ساتھ تعداد کی ریس نہیں لگائی ہے، پھر شروع میں ہی زیادہ کی لالچ میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ اپنے اندر مستقل مزاجی لے کر آئیں، کیونکہ آپ نے مستقل اس رستے پر چلنا ہے۔ مرشد ایک پیر و مرشد اپنے سالک کو یا اپنے مرید کو جب سبق دیتے ہیں تو اسے زیادہ کی تعداد میں نہیں لگا دیتے، بلکہ اس کو ترتیب سے چلاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی استاد یا جب کوئی درود کی دعوت دینے والا آپ کو یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ तादाद बेशक कम रहे लेकिन कसरत से पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मतलब होता है कसरत। अब कसरत क्या होता है? कसरत यही है कि आप अपने वक़्त को मैनेज करें। अब मसलन आप 3 तस्बीह 300 मरतबा सुबह में पढ़ लें, आप 300 मरतबा दोपहर में पढ़ लें, आप 300 मरतबा शाम में पढ़ लें, आप 300 मरतबा सोते वक़्त पढ़ लें। अब देखें ये 1000-1200 की तादाद होगी, बज़ाहिर ये तादाद कम है, लेकिन ये कसरत में शुमार होगी, ये ज़्यादा में शुमार होगी। इसी को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। इसके बरअक्स अगर आप दिन में 300 मरतबा पढ़ लें, फिर रात को 100 मरतबा पढ़ें और रोज़ाना ही ये आप कमी बेशी करते रहें तादाद में, तो फिर ये दुरूद पढ़ना तो हुआ लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और कसरत नहीं होगी। बात समझ आ रही है ना कि कसरत से मुराद मुस्तकिल मिजाजी से तादाद को फिक्स करके रोज़ाना पढ़ना। और या यूं कह ले कि कसरत बुजुर्गान दीन ने कसरत की तादाद कम से कम 313 मरतबा रखी है। आप पूरे दिन में 313 मरतबा भी पढ़ ले तो ये आपका कसरत से शुमार होगा, लेकिन शर्त ये है रोजाना पढ़ें। अब बात करते हैं कि थोड़े से ज्यादा की तरफ कैसे जाएं। सबसे पहले आप अपना मिजाज देखें, अपनी सहूलत देखें, अपना वक्त देखें। कुछ लोग जोश और जज्बे में आकर यकदम पढ़ना शुरू करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हार जाते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 2 से 3 माह हो चुके हैं ऐड हैं, लेकिन फिर एक दिन लीव कर जाते हैं, ग्रुप लीव कर जाते हैं। वजह यही है कि उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं। जब मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो दुरूद की मोहब्बत और शौक भी नहीं बढ़ेगा, नतीजतन ग्रुप छोड़ देते हैं। हालांकि एक किस्त रोजाना अपलोड होती है, कोई अब इसके अलावा कोई मैसेज नहीं होता, और ये किस्त आपके ज़ौक शौक को बढ़ाती है। लेकिन जब ज़ौक शौक ही नहीं आप में कायम रहेगा, आप इसको मजबूती से थाम ही नहीं सकते, तो फिर आप एक ना एक दिन लीव कर जाएंगे ग्रुप भी, और इसी तरह दरूद की तादाद में भी कम होती जाएगी। तो पहले आप अपना मिजाज देखें कि मेरे मिजाज में जल्दबाजी है या ठहराव है। अगर जल्दबाजी है तो अपने आप को यकीन दिलाएं कि मैंने जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि मैं बाहिम्मत अंदाज में रोजाना पढ़ूंगा, चाहे 300 मरतबा क्यों ना पढ़ूं। फिर इसके बाद अपनी सहूलत देखें। मसलन मेरा कारोबार इस तरह का है, मैं काम के दौरान दुरूद नहीं पढ़ सकता, यानी मेरा कंप्यूटर वर्क का काम है और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर होती हैं 6 से 8 घंटे, और मुझे अपने कस्टमर्स के फ़ोन भी सुनने होते हैं, लिहाजा मैं साथ साथ दुरूद नहीं पढ़ सकता। लिहाजा मैं ऐसा वक्त और ऐसी तादाद फिक्स करूंगा कि मेरा दुरूद मुस्तकिल मिजाजी में शुमार हो जाए। मसलन मुझे मगरिब के बाद से लेकर सोने तक का टाइम जो है वो फुर्सत का टाइम है, तो मैं अपने दुरूद को उसमें मुकम्मल करूंगा। 2000 मरतबा आसानी से पढ़ सकता हूँ तो 2000 मरतबा पढ़ लिया करूंगा। लिहाजा मैं दिन भर पढ़ने के बजाय उस वक्त पढ़ने को तरजीह दूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं फ्री होता हूँ और आसानी 2000 मरतबा पढ़ लेता हूँ। याद रखें, हदीस की कोई किताब हो या दुरूद के फजाइल की मुशाहिदात की कोई किताब हो, कोई भी शख्स आपको ये जोर नहीं देगा या ये शर्त नहीं रखेगा कि रोजाना पढ़ोगे तो कसरत होगा, सॉरी, सुबह से लेकर रात तक पढ़ोगे तो कसरत में शुमार होगा। रोजाना पढ़ें, थोड़ा पढ़ लें, और जो थोड़ा होगा वही आपकी कसरत कहलाएगी। असल चीज रोजाना है, नागा ना हो। हाजिरी रोजाना लगनी चाहिए, बेशक सबक थोड़ा याद हो या ज्यादा याद हो। इसी तरह आप भी अपनी सहूलत देखो कि किस किस वक्त आप कितना पढ़ सकते हैं। मसलन दिन भर आप 3000 पढ़ सकते हो तो यही तादाद फिक्स कर लें। ऐसा करने से आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि कल ज्यादा पढ़ा गया था, आज थोड़ा पढ़ा है। रोज की तादाद मुकर्रर रहेगी और कसरत में भी शुमार होगी। इसे हम ज्यादा भी कह सकते हैं कि ज्यादा दुरूद पढ़ते हैं। और फिर कोशिश ये करें कि खुशी हो, गमी हो, आंधी हो, तूफान हो, आपकी ये तादाद ना कम हो। कम से कम फिक्स तादाद में तो कमी ना आए कि जो आपने तादाद फिक्स की हुई है वो कम नहीं हुई। बात समझ आ रही है ना आपको? अब जब
आप अपनी फिक्स तादाद पर मुस्तकिल मिजाजी साबित कदमी इख्तियार कर लेंगे, तो फिर अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके तादाद को बढ़ाना शुरू करें। मसलन अगर पहले एक माह मुस्तकिल मिजाजी से आप 3000 मरतबा दुरूद पढ़ते आए हैं और इसमें नागा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़बान पर रवानगी आ गई। अब आप दूसरे माह में 1000 की तादाद में मजीद इजाफा कर दें, यानी 1000 उसमें मजीद ऐड कर दें। 3000 पहले पढ़ रहे थे, 1000 और ऐड कर लें, 4000 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें रोजाना। इस तरह हर महीने तादाद को अपनी सहूलत के मुताबिक बढ़ाते रहें। अब आपको पढ़ने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और ना ही आप थकेंगे, ना ही आपको ये लगेगा कि भाई हमने कल कम पढ़ा था या कल ज़्यादा पढ़ा था, आज कम पढ़ा गया। आपकी एक आदत बन जाएगी। तबीयत बेचैन रहेगी जब तक आप अपनी फिक्स तादाद को मुकम्मल ना कर लेंगे, क्योंकि आपकी रूह को भी अनवारात के नज़ूल की आदत पड़ गई होगी। तबीयत भारीपन या मिजाज से उकताहट ख़त्म हो गई होगी। मुस्तकिल मिजाजी अगर रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूह को भी अनवारात के नुज़ूल की आदत हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, मुस्तकिल मिजाजी और रवानगी या तय वक्त ये किसी एक दुरूद को पढ़ने से हासिल होगा। बार बार दुरूद तब्दील करेंगे तो ज़बान पर रवानगी नहीं आएगी। दुरूद सारे अच्छे हैं, सब दुरूद अफजल है, लेकिन विर्द में जो कसरत में हो वो कोई एक हो। मसलन मैं 11 साल से दुरूद रहमत पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे फारिग वक्त मिले तो मैं दुरूद ताज भी एक आध मरतबा पढ़ लेता हूँ। कभी कभी दलाइलुल खैरात भी पढ़ लेता हूँ, दरूद तंजीना भी पढ़ लेता हूँ, दुरूद बराए रिज़्क कुशादगी भी पढ़ लेता हूँ, यानी सारे दुरूद पढ़ लेता हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश है, जब क़यामत वाले दिन मेरा नामा अमाल खुले तो उसमें कोई दुरूद ऐसा ना हो, बड़े बड़े मशहूर दुरूद, कि कोई दुरूद ऐसा ना हो जो मैंने ना पढ़ा हो। सब दुरूद पढ़े हुए हो मैंने, और तादाद ज्यादा किसकी हो, वो मेरे कसरत वाले दुरूद की हो, यानी दुरूद रहमत की। अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर किसी एक दुरूद को ही विर्द करे तो बाकी के दुरूद जो हैं, क्या उनके मुशाहिदात या उनकी बरक़ात मिलेंगी? जरूर मिलेंगी। आपकी नीयत मोहब्बत वाली होगी तो हर दुरूद अपना कोई ना कोई फायदा आपको लाजमी देगा। बात समझ आ रही है ना? तो आप लोग बाकी के दुरूद भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन अपना जो असल दुरूद है, जो आपकी निस्बत कहलाएगा, उसकी तादाद में कमी ना आए। खुलासा ये है कि थोड़ी तादाद से ज़्यादा की तरफ बढ़ें। ये असूल है दुरूद पढ़ने का, फैज़ लेने का, जो कि बुजुर्गों के तजुर्बात से साबित है। एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, रेस लगाएंगे, तो फिर बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने और लिखवाने और इसकी इशाअत व तबलीग करने